Hello guys, today's topic is the data types. Data types. This is a very important topic because data types is a very important all language के लिए जो भी languages है all language में data type is available. तो this is a very important topic. Okay, तो data types क्या है वो firstly हम देखते हैं as something. Data types are the classification or categorization of the data items. Okay, it represents a kind of value that tells that what operation can be performed on a particular data. Then everything is an object in Python programming. So data types are actually classes and variable are instance means object of these classes. Then standard or built-in data types available in Python just like this. Numerical में numerical again three types data available in numerical format just like int है, float और complex है. Then another data type is a string. Next one is a list, set, tuple और dict. This is a available data types just like this. यहाँ पे देखना number including three data types. First one is a int means integer, then complex or then float. Okay, then another data type is a string, then list, tuple, set or dictionary. This data type available in Python. जो int है, int just like any random number means 123. This is a int data types. Suppose a equal to 123 आप असाइन करते हो और प्रिंट ऑफ a करते हो तो दैट्स टाइम 123 शो होगा. और अब सपोज शो दिस डेटा टाइप्स तो टाइप ऑफ a तो ओके दिस डेटा टाइप्स इज अ int. सो तो हम वन बाय वन सब डेटा टाइप्स एज देखते हैं. देन एज ए न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स इज अ इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स. तो व्हाट इज इंटीजर? This value is represented by int a class int. Okay, in class it contains positive or negative whole numbers without fractional or decimal. Okay, in Python there is a no limit to how long an integer value. आप मतलब इसका लिमिट नहीं है. ओके, कितना इसे रखे आप, नो लिमिट. ओके, then next data type is a float. Float is a value are represented by the float class. It is a real number with floating point representation. It is specified by a decimal point. Then correct मतलब decimal point is a negative as well as positive number may be appended to specify scientific notation. और then last one is a complex number. Complex number is a just like any number लीजिए, just like 2 + 3 और लास्ट में j. This is a complex number. ओके, और उसका टाइप चेक करना है तो टाइप ऑफ दिस. तो मैं इसका भी लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स का देखते हैं हम. 2 + 3j करता है. ओके, और उसका किसी एक वेरिएबल में, पर्टिकुलर वेरिएबल में हम उसे ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्स में इक्वल टू दिस. देन प्रिंट करता है प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ cpx. तो क्या टाइप है? कॉम्प्लेक्स है. सेम एज हम टाइप देखते हैं फ्लोट का, एक फ्लोट नंबर असाइन करता है flt इक्वल टू 123.231. ओके, और देन उसे प्रिंट करता है प्रिंट ऑफ दिस नंबर देन टाइप ऑफ flt. तो क्या टाइप है उसका? फ्लोट. है समझ में? दिस इज अ int complex or float data types in using a Python.
सपोज आपको मैथ के कुछ इसमें डेटा टाइप्स देखना है। सपोज हमें देखना है किसी स्क्वायर फाउंड करना है, हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो दैट्स एम इंपोर्ट दिस इज अ स्मॉल लैब ऑफ इन पाइथन मैथ। देन print of math dot sqrt is a square। देन किसका स्क्वायर फाइंड करना है, सपोज मुझे 100 का देखना है, तो दैट्स एम दिस 100 किसका स्क्वायर 10 का। यहाँ पे 100 की जगह पे आप लिखते हैं, सपोज मैं 121 लिखता हूँ, तो वो किसका है, इट्स सॉरी ओके वो किसका 11 का। सो इससे भी हम उसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स क्या है, यहाँ पे मैं नोटेशन भी लिखता हूँ। यहाँ पे है दी SQRT मीन स्क्वायर method returns the square root of x for x ओके बट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये था हमारा। एक अनदर फंक्शन है, वो भी देखते हैं हम। सेकंड वन इज अ राउंड, उसके नाम से ही पता चलेगा राउंड क्या है। तो राउंड इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। इट रिटर्न्स x राउंडेड टू एन डिजिट फ्रॉम अ डेसिमल पॉइंट। उसका एग्जांपल देखते हैं हम। प्रिंट ऑफ, सपोज मुझे राउंड निकालना है, सपोज 70.234156 दिस इज़ द फर्स्ट आर्गूमेंट। अब मुझे फ्लोटिंग पॉइंट के बाद फ्लोटिंग पॉइंट के बाद मुझे कितने डिजिट लेना है, मैंने सपोज मुझे 2 चाहिए, तो दैट्स हम देखना 70। ये राउंड करेगा आपका, ओके जस्ट राउंड है। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो दैट्स हम देखना कंट्रोल दिस आया 70.23 समथिंग है। यहाँ पे अदर भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस 80.264 देन मैंने 3 दिया, सॉरी मैंने राउंड ही नहीं दिया था ना, राउंड ऑफ कितना है, मैंने 3 डिजिट दिया। सेकंड आर्गुमेंट मेरा कितना है 3 है, तो इस वजह से उसने 3 तक लिया 264। यहाँ पे सपोज मेरा अदर्स होता जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे मेरा अदर होता तो दैट टाइम भी वो 3 ही लेता। बट सपोज यहाँ पे 2 की जगह पे मेरा 6 था, 7 है, अबाउट 5, तो दैट सेम क्या कन्वर्ट करेगा, 4 का कन्वर्ट 5 में होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के वे से। सपोज यहाँ पे मैं 2 चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट के बाद मुझे 2 ही डिजिट है, दिस एंटर 2 देन 2.6 आ रहा है, 26 आ रहा है। अब ये 6 यहाँ पे 4 की जगह पे मैंने 9 लिखा होता, तो 4 का कन्वर्ट 7, 6 का कन्वर्ट 7 में होगा। आया समझ में, ये 6 का कन्वर्ट 7 होगा, बिकॉज नेक्स्ट नंबर है 9 इज अ ग्रेटर देन 5। सो देन नेक्स्ट डेटा टाइप इज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे देखना, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो एक तो सिंगल इनवर्टेड या डबल इनवर्टेड कोमा में होता है। ओके कौन सा, सिंगल या डबल इनवर्टेड कोमा में होता है। तो हम वो देखने वाले स्ट्रिंग डेटा टाइप्स अभी। स्ट्रिंग इज बेसिकली इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, ओके, और रिप्रेजेंट टू डबल या सिंगल कोटेड। ओके स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। यहाँ पे देखना, सपोज मैं एक str1 लेता हूँ, str1 इक्वल टू एक को मैं लेता हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके पाइथन प्रोग्रामिंग, और मैं str को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ऑफ str1, ओके पाइथन प्रोग्रामिंग। ये था क्रिएटिंग वे टू
स्ट्रिंग, ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को. देन दिस इज अ क्रिएटिंग वे ऑफ स्ट्रिंग. देन अनदर इज अ एक्सेसिंग एंड स्लाइसिंग. कौन सा? एक्सेसिंग एंड स्लाइसिंग. उसमें क्या है देखिए, सपोज मुझे आपकी जो str1 है, str1 इज अ स्ट्रिंग, आपको पाइथन है तो मुझे चाहिए ओ चाहिए, तो दैट से हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो प्रिंट ऑफ str1 स्क्वायर ब्रैकेट, और जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है कभी भी 0 से स्टार्ट होता है. ओके, तो 0 1 2 3 4 कितना है? 4 है, तो 4 लोकेशन में स्टोर द 0. ओके, आ रहा है. देन ये था हमारा एक्सेसिंग. आप उसे नेगेटिव से भी कर सकते हैं. सपोज आपको नेगेटिव वे से करना है तो देखना दैट सेम. आपको चाहिए आई चाहिए, दिस आई, तो नेगेटिव वे से -1 -2 -3 में लोकेटेड है. देखते हैं -3 में है या नहीं, तो -3 दिया तो आ रहा है आई. वही दिस इज अ एक्सेसिंग ऑफ यूजिंग इंडेक्सिंग. अभी हम देखते हैं स्लाइसिंग. तो str1 पे मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ. मुझे चाहिए पाइथन है जो पाइथन का p है, ये p है, सॉरी p से नहीं, t से लिखते हैं. t से लेके मुझे g तक चाहिए. अभी t का इंडेक्स पॉइंट कितना है? 0 1 2 है. कितना है? 2 कोलन, और मुझे चाहिए g तक 0 1 2 3 4 5, स्पेस को 6 है, 7 8 9 10 है. g लोकेटेड इन 10, बट यहाँ पे एक दिक्कत है, हमें g भी चाहिए तो अभी g नहीं आएगा, बिकॉज क्या होगा? n-1 होगा, और लास्ट का जो n होता है, n-1 होने के बाद हमें 10 का 10-1 किया तो 9 पोजीशन पे जो o है वहाँ तक है, बट हमें g तक चाहिए तो हमें 11 करना होगा. तो कितना है? टॉन प्रॉक. ओके, दिस इज अ स्लाइसिंग. सपोज मुझे चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चाहिए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चाहिए, तो दैट सेम क्या करना है आपको क्या करना है? जस्ट कोलन लगा के छोड़ देना है. इससे ऑल स्ट्रिंग आपके आ जाएगी. और मुझे चाहिए 11 तक, तो दैट सेम क्या रहा है? पाइथन प्रॉक. ये था स्लाइसिंग वे. देन अनदर वे हम डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे. हमने उसे एक्सेसिंग किया, बट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, हम अपडेट नहीं कर सकते, बट एक अनदर वे से हम उसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं. जस्ट लाइक var1 में मैंने स्टोर किया है हेलो वर्ड, और मैंने प्रिंट किया, मैं अपडेट स्ट्रिंग कर रहा हूँ, इस जस्ट स्ट्रिंग पास की. var1 का मुझे चाहिए स्टार्टिंग से लेके मुझे चाहिए 6 तक. ओके, कहाँ तक चाहिए मुझे? 6 तक. 6 मीन्स दिस 0 तक हेलो आ जाएगा, और प्लस मैंने यूजिंग कॉन्कैट किया, यूजिंग प्लस ऑपरेटर से आगे है पाइथन, तो हमारा प्रिंट होगा हेलो पाइथन. ओके, ये था. देन नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स है. सपोज माय नेम इज अ, मुझे इस यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए और यहाँ पे मेरा वेट आना चाहिए, तो दैट्स हम देखना माय नेम इज %s एंड वेट इज %d kg, और मॉडुलस साइन पैरेंथेसिस ऑफ मैंने फर्स्ट वैल्यू दी सैमी, और नेक्स्ट मैंने उसकी वेट बताया 63. तो सैमी जो है वो लोकेटेड होगा यहाँ पे, और 63 इज लोकेटेड दिस. यस, जो यस क्या होता है? एज अ स्ट्रिंग के लिए होता है, और डी एज अ डिजिट के लिए होता है. तो यहाँ पे देखना, सपोज यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, समय लिया और मैंने दिस वन को चेंज किया और 53 रखा, तो दैट्स एम यू. माई नेम इज समय एंड वेट इज 53 आ रहा है. ओके, ये था हमारा स्ट्रिंग का. देन अनदर इज हमने अपडेटिंग किया, स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर भी किया. अनदर भी है, जस्ट लाइक आपको करना है किसी स्ट्रिंग का कैपिटलाइज करना है, और कैपिटलाइज इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ ओनली इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज होगा. जस्ट लाइक दिस इज माई स्ट्रिंग. ओके, str1 है, दिस इज माई स्ट्रिंग. देन यहाँ पे देखना str1 इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग एग्जाम्पल वाह. तो यहाँ पे जो t है, जस्ट t है ना,
ओ कैपिटल होगा, अदर सेम एज रहेगी। देखते हैं, देखा यहाँ पे देखना मेरा टी चेंज हो रहा है, अदर जो स्ट्रिंग है एज इट इज़ है, दिस इज अ कैपिटलाइज फंक्शन। देन नेक्स्ट फंक्शन इज अ सेंटर फंक्शन। सेंटर फंक्शन इज अ रिटर्न अ स्ट्रिंग पैडेड विद द fill char with the original string centered to a total of the width columns। मीन्स क्या, प्रिंट ऑफ str1 सेंटर 52, मैंने टोटल लेंथ कितनी दी 52 और डॉलर साइन असाइन किया, मतलब बिगिनिंग एंड एंडिंग में डॉलर साइन असाइनिंग होगा और बीच में जो हमारी स्ट्रिंग है वो सेंटराइज होगी। दिस इज अ सेंटर। देन नेक्स्ट वन इज अ फाइंड। डिटरमाइन इफ str मीन्स स्ट्रिंग occurs in the string or in a substring of a string if a starting index bag means beginning and ending index and are given, returns index if found and otherwise -1 means -1। सपोज यहाँ पे मैंने str1 लिया और str2 है, राइट। str1 में क्या है, दिस स्ट्रिंग है, और str2 में क्या है, एग्जाम है। यहाँ पे ईर देता हूँ मैं, एग्जाम है। अभी क्या होगा, हमें जो सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू है एग्जाम वो फाइंड करनी है फर्स्ट str के वैल्यू में, तो क्या देना होगा, str1 डॉट फाइंड str2। और str2 में str2 की वैल्यू जो है एग्जाम, जो एक्स्ट्रा str1 में फाइंड होगी, बट फाइंड होने के साथ जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो हमें देगी, तो वो कहाँ आ रहा है, 15 आ रहा है। सपोज फाइंड नहीं होता है तो यहाँ पे मैंने ई की जगह पे यहाँ पे m लिखा, तो मेरा फाइंड नहीं होगा, राइट। तो दैट सेम क्या होगा आंसर, -1 होगा, तो फाइंड नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे मैंने कैपिटल ई भी लगाया यहाँ, तो दैट से वो फाइंड नहीं होगा, बिकॉज दिस ई और दिस इज डिफरेंट है, तो इस वजह से ये था हमारा फाइंड। सेम एज हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है, str1 में फाइंड करना है str2 की वैल्यू और उसका इंडेक्स देना है, सेम जस्ट लाइक दिस। अभी 15 आ रहा है, ओके। देन अभी नेक्स्ट है इज अलम नम। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ अ स्ट्रिंग हैज एट लीस्ट 1 कैरेक्टर एंड ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिकल एंड फॉल्स अदरवाइज। यहाँ पे देखना str है, मैंने यहाँ पे देला, यहाँ पे क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल है, बट नो स्पेस इन दिस स्ट्रिंग, आई एम राइट। तो हमारा क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा। बट दिस स्ट्रिंग देखना, दिस इज अ स्ट्रिंग, यहाँ पे पेस है, अल्फा न्यूमेरिकल अब्सेंट है, दैट टाइम क्या होगा, फॉल्स हो गया। देन अनदर इज लोअर str, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये मेरे स्ट्रिंग है, ओके मैं इसे str1 देता हूँ। यहाँ पे देखना ये मेरी स्ट्रिंग है, आई एम राइट। str1 मेरे स्ट्रिंग है, उससे मुझे क्या करना है, इज लोअर है या नहीं चेक करना है। तो पहले फॉल्स क्यों आ जाएगा, बिकॉज उसमें कुछ लेटर कैपिटल है, तो इस वजह से टोटली लोअर में नहीं है, तो इस वजह से फॉल्स आ रहा है। सेकंड जो स्ट्रिंग है वो उसमें ऑल लेटर्स आर, ऑल कैरेक्टर आर स्मॉल लेटर या लोअर केस में, तो दैट से हमारा ट्रू आ जाएगा यूजिंग str2 डॉट स्लोअर फंक्शन से या मेथड से बोल सकते हैं। इसके अपोजिट भी इज अपर भी है, वो भी आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अपर एंड लोअर मेथड। मैंने फिर से str1 लिया, str1 दिया मैंने, यहाँ पे सपोज आप, मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, अनदर स्ट्रिंग देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ, मैं ये स्ट्रिंग देता हूँ, ओके वहाँ पे। यहाँ पे देखना मैंने ये स्ट्रिंग लिए, फर्स्टली क्या होगा, str1 पर अपर फंक्शन एक्टिव होगा, देन लोअर फंक्शन होगा, आप देखना कैसे आउटपुट आता है। देखना अभी फर्स्ट क्या होगा, जो भी मेरे स्ट्रिंग है ऑल लेटर्स आर लोअर केस, दैट उसे अपर मेथड से क्या होगा, str1 में हमने अपर यूज़ किया, तो इस वजह से ऑल लेटर्स आर अपर केस। देन उसी पे जो भी आउटपुट आ रहा है फिर से हमने उस पर लोअर यूज़ किया, दैट सेम ऑल लेटर आर स्मॉल लेटर, दिस था अपर एंड लोअर मेथड। ये था हमारा स्ट्रिंग का। String is a data types using in Python as well as in immutable data types in Python. Next one is a list. A list is a sequence. List is a sequence data type in Python. Collection which is a order. Collection कैसा है, इसका order है और changeable है because immutable है। Immutable है या mutable है? Mutable है। List is a mutable. List is a slower than tuple. List क्या है? Slower है।
किसके? टपल से। बिकॉज लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा स्टोर एंड मेमोरी मैनेजमेंट। जो लिस्ट का होता है मेमोरी मैनेजमेंट वो कैसा होता है? सीक्वेंस होता है, सीक्वेंसली डेटा स्टोर करता है और मेमोरी मैनेजमेंट में भी। इस वजह से हमारा जो लिस्ट है इज अ स्लोअर देन टपल है। लिस्ट आर रिटर्न विद द स्क्वायर ब्रैकेट। जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं उसे वहाँ पे हम लिस्ट असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएटिंग अ लिस्ट। यहाँ पे मैंने लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका एग्जांपल। लिस्ट 1 लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री 1997 और 2000। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमें लिस्ट दे रहा है और उस लिस्ट का हमें टाइप देखना है। तो कैसे देखेंगे? प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ लिस्ट 1। तो दैट सेम क्या है? हमारा जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है? हमारा लिस्ट है। उसे एक्सेसिंग कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। अभी हमारी जो लिस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, सवान है, लिस्ट 2 दिस 1 है। यहाँ पे देखना, लिस्ट ऑफ 1 से मुझे 0th इंडेक्स चाहिए। 0th इंडेक्स में क्या है मेरा? फिजिक्स है। 1th इंडेक्स में केमिस्ट्री, सेकंड में 1997 और नेक्स्ट वन में 4th में मेरा है 2000 है। सेम एज लिस्ट 2 में मुझे आइटम 1 से लेके 5 तक चाहिए। 1 का है 2 से लेके 5 तक, मीन्स 0 1 2 3 4 5 तक चाहिए। 5 में कौन सा है? 6 है, बट n-1 किया तो हमारा क्या है? 4 तक आ रहा है। तो इस वजह से देखना क्या होता है। तो पहले फर्स्ट नंबर 0th लोकेशन में हमारा फिजिक्स लोकेटेड हो रहा है और 1 से लेके 5 तक, मीन्स 1 इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक ही प्रिंट होगा। इस वजह से 2 3 4 आ रहा है। यहाँ पे फिजिक्स नहीं चाहिए हमें। सपोज फिजिक्स की जगह पे हमें यहाँ पे मुझे चाहिए कौन सी इंडेक्स? मुझे 3rd इंडेक्स में क्या लोकेटेड है वो देखना है। तो दैट से मैं 3rd देख रहा हूँ। तो क्या आउटपुट आता है देखना। 3rd में मेरा 2000 लोड है। देन आगे है अपडेटिंग लिस्ट। अभी लिस्ट इज अ म्यूटेबल, दैट्स हम उसे हम अपडेट भी कर सकते हैं। देन यूजिंग सम मेथड्स। दिस इज अ फर्स्ट मेथड इज अ, मैंने एक लिस्ट ली, मैंने एक लिस्ट 1 ली। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 ली, उसमें कुछ आइटम्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री 1997 2000 है। उसे मुझे अपडेटिंग करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने शो कर रहा हूँ जस्ट अपडेटिंग। लिस्ट ऑफ 2 है, लिस्ट ऑफ 2 में क्या होगा? 1997 है, दिस वन इंडेक्स है। यहाँ पे अपडेटिंग नहीं है, सॉरी, दिस इज एक्सेसिंग है। ओके, यहाँ पे जस्ट हम एक्सेसिंग कर रहे हैं फिर से। देन यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपडेट लिस्ट, यहाँ पे देन लिस्ट ऑफ 1 ऑफ 2 करा, मतलब उसकी जो सेकंड पोजीशन है उसके सेकंड पोजीशन पे विच वैल्यू लोड इज अ सेकंड पोजीशन में है 1997 लोड है, राइट। देन यहाँ पे देखना, इसके जो सेकंड इंडेक्स है 0th, फर्स्ट और सेकंड में क्या है 1997 है, बट हमें जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे हमें स्टोर करना है 2001। तो दैट्स हम इतना ही करना है आपको। लिस्ट ऑफ 2, लिस्ट ऑफ मतलब जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल नेम ऑफ इंडेक्स इक्वल वैल्यू, दैट्स हम देखना क्या होगा, आ रहा है 2001। अभी मुझे क्या करना है 2001 की जगह पे 2007 करना है। तो आपका उसका इंडेक्स कितना है 3 है, मैंने इंडेक्स दिया 3 और यहाँ पे मैं 7 कर रहा हूँ और मैं इंडेक्स जान रहा हूँ थर्ड में विच वैल्यू स्टोर। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 207। ये था अपडेटिंग लिस्ट। अभी लिस्ट इज इम्यूटेबल है तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। देन फॉलोइंग वे से, पहले है डेल इज अ डिलीट, डेल ऑफ लिस्ट ऑफ 2। लिस्ट ऑफ 2 में क्या है 0 1 2 में क्या है 1997 है, तो वो रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद जो लिस्ट है वो हमें शो होगी। तो देखते हैं रिमूव हुआ है ना। ओके, तो पहले हमारी लिस्ट होगी, ऑल लिस्ट में इतने आइटम्स है मेरे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, योगी आदित्यनाथ, हेलो उत्तर प्रदेश 102, बीजेपी सोन, तो सब शो रहे। और मैंने डिलीट किया सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स में विच वैल्यू दिस 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे एब्सेंट,
ऑब्सेंट है ना यहाँ पे 1997 इज अ डिलीट। देन सेकंड ऑपरेशन यूजिंग डिलीट के लिए हम पॉप भी यूज़ कर सकते हैं। पॉप में मैं इंडेक्स भी पास कर सकता हूँ या विदाउट पॉप के देखते हैं क्या हो रहा है। पॉप लिस्ट ऑब्जेक्ट नीड्स टू एन आर्गुमेंट, आपको आर्गुमेंट देना है। सपोज मुझे 2000 रिमूव करना है। अभी 2000 की इंडेक्स कितने हैं 0 1 2 है, तो मैं 2000 का 2 इंडेक्स पे लोकेटेड है 2000, तो उसे मैं डिलीट करा। तो पहले आपको लिस्ट 1 देना होगा यहाँ पे। ओके, मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। 2000 मेरे डिलीट होके मुझे रिटर्न कर रहे हैं यूजिंग अ पॉप ऑपरेशन। ओके, और आप जस्ट विदाउट एनी इंडेक्स पास करते हैं और आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो दैट टाइम जो भी आपका लास्ट इंडेक्स था, यहाँ पे मेरा बीजेपी लास्ट इंडेक्स था और रिमूव हो रहा है और मुझे रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मीन्स मुझे शो कर रहा है कि भाई तेरा आइटम मैं डिलीट किया है अभी यूजिंग अ पॉप ऑपरेशन से। ये था हमारा पॉप ऑपरेशन। और थर्ड वन इज अ रिमूव। देन दिस इज अ ऑब्जेक्ट टू बी एंड रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे देखना मेरे लिस्ट 1 है, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ है। लिस्ट 1 से रिमूव कर रहा हूँ मैं बायोलॉजी, तो देखना प्रिंट क्या होता है। मैं बायोलॉजी की जगह पे केमिस्ट्री रिमूव करता था बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ अ वेरी हार्ड फॉर माई साइड। देन मैथ इज माई मुझे मैथ बहुत पसंद है, तो मैं मैथ को रिमूव नहीं करूँगा। ओके, तो देखना पहले क्या था, मैंने क्या रिमूव किया, फर्स्टली केमिस्ट्री रिमूव किया, तो दैट टाइम मुझे केमिस्ट्री शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट मैंने फिजिक्स रिमूव किया, मुझे फिजिक्स शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। जस्ट ओनली 2 सब्जेक्ट आर अवेलेबल, फर्स्ट वन इज अ बायोलॉजी, सेकंड वन इज अ मैथमेटिक्स। ये था हमारा रिमूव फंक्शन। सपोज आपको लेंथ जाननी है किसी लिस्ट की, तो लेंथ ऑफ लिस्ट कर देना। यहाँ पे मैंने सपोज आइटम बढ़ा देता हूँ। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी है 9 यूजिंग अ लेंथ फंक्शन। आप कॉन्कैट भी कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर से टू लिस्ट को। सो ऑन दिस 1 2 3 इसमें हम सपोज 9 लेते हैं। ओके, और इसमें एक 0 ऐड कर देते हैं, तो देखा कॉन्कैट हो रहा है 1 2 9 3 9 4 5 0 6। ओके, देन आप उसे आपके लिस्ट का जो भी आइटम है उसको आपको 5 टाइम देखना है, तो दैट आई एम यूजिंग अ स्टार ऑपरेटर्स। एंड आपको देखना है कि आपने एक ऑपरेटर देखा इन नॉट इन, राइट, उसमें से है इन फंक्शन। तो हम देख रहे हैं इन ऑपरेटर, तो 3 हमारे लिस्ट में है या नहीं देखना है, तो 3 इन यहाँ पे है, इस वजह से हमें ट्रू दे रहा है। यहाँ पे मैंने 9 दिया तो क्या होगा, फॉल्स होगा। 9 की जगह पे अभी मैंने 4 देता हूँ, तो दैट टाइम ट्रू होगा बिकॉज 4 इन माई प्रेजेंट इन माई लिस्ट, सो इस वजह से ट्रू आ रहा है। आप लिस्ट को फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मैंने सैमी लिया और सैमी में लिस्ट स्टोर की मैंने 1 2 3। ओके, 1 2 3 की जगह पे मैं देन 4 5 6 7 8 9 तक लिया हूँ। देन यहाँ पे क्या होगा, एक इटरेटिंग होगा। जब हम फॉर लूप देखेंगे, फॉर लूपिंग कंसेप्ट देखेंगे, दैट से आपको पता चल जाएगा लूपिंग क्या होता है। तो मैं लूपिंग भी लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखना फॉर एक्स इन समय की जो भी वैल्यू है इटरेटिव होती है, यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमें प्रिंट कर देंगे। आप यहाँ पे एक्स की जगह पे आई एनी कैरेक्टर लिख सकते हैं, नो इशू। ओके, जस्ट फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखना 1 by 1 ऑल वैल्यूज हमें शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट वो सिक्वेंसली इटरेटिंग हो रहे हैं, इटरेटिंग का सीक्वेंस। ओके, देन इज आपको सपोज कोई लिस्ट का मैक्स देखना है, मैक्स ऑफ लिस्ट देखनी है, मैक्स मीन्स मैक्सिमाइज, मिनिमाइज देखना है, तो आप आपकी जो भी लिस्ट है वो दे देना उसे। मैंने लिस्ट 1 पे मैक्स देखा, लिस्ट 2 में भी। अभी यहाँ पे पाइथन क्यों आ रहा है, बिकॉज पाइथन की जो लेंथ है इज ग्रेटर देन जावा एंड C++, इस वजह से पाइथन को मैक्स दिखा रहा है। और यहाँ पे जो ऑलरेडी 700 इज ग्रेटर देन 4 5 6 है और 200 से ग्रेट है, तो इस वजह से 700 दिखा रहा है। अभी मैंने उस पर ही मिनिमाइज किया, तो यहाँ पे C++ दिखा रहा है, बिकॉज जावा से कम लेंथ ऑफ C++ की लेंथ है, इज कम लेंथ है, तो दैट से वो C++ शो क्या आ रहा है। सेम एज हमें यहाँ पे देखता हूँ तो मिनिमम वैल्यू इज 200, दैट टाइम इज शो 200। अभी लिस्ट इज अ म्यूटेबल, दैट्स आई एम इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। सो मैंने सपोज एक लिस्ट ली, वेरिएबल नेम इज b, then some values available in my list. First one is a Yogi, then Adityanath UP 102 new CM. then यहाँ पे देखना जस्ट प्रिंट हो रहा है। अभी मुझे इंसर्ट करना है बीजेपी। फर्स्टली हम अपेंड से भी उसे इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग अपेंड ऑपरेटर, अपेंड मेथड से। तो
कौन से वेरिएबल में इंसर्ट करना है उस वेरिएबल का नेम डॉट अपेंड, और कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना है उस वैल्यू का नाम। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया बीजेपी और बीजेपी मेरा आ रहा है लास्ट में। तो ये था हमारा बीजेपी यूजिंग द अपेंड मेथड से। देन इंसर्टिंग अ मल्टीपल वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट। सपोज आपके पास क्या है, मेरे पास दो लिस्ट है, एक पी लिस्ट है और एक क्यू लिस्ट है। ओके, ए बी सी और 10 20 30 है। मैं एक्सटेंड यूज़ कर रहा हूँ, एक्सटेंड से भी ऐड होती है बट कैसे होती है वो भी देखना, और अपेंड से कैसे ऐड होती है वो भी देखना। यहाँ पे देखना पी है और क्यू है, राइट। तो पी में मुझे एक्सटेंड करना है क्यू की वैल्यूज़, तो दैट्स व्हाई मैंने पी पे एक्सटेंड की है क्यू की वैल्यूज़, और देखना कैसे आ रहे हैं। ओके, तो अभी आ रही है। और जो भी क्यू की वैल्यूज़ है 10 20 30 एज उससे ऑल वैल्यूज़ को एज अ 1 1 इंडेक्स असाइन हो रहा है। 10 के लिए अलग इंडेक्स, 20 के लिए अलग, 30 के लिए अलग। और हम उसे ऐसे देख सकते हैं, पी ऑफ 4 कितना है 20 है, पी ऑफ 5 कितना है 30 है, और पी ऑफ 6 कितना है, ओके पी ऑफ 6 ना है तो आपको -1 करना होगा, ऐसे हम क्या होगा 30 आ रहा है। देन अभी मैं अपेंड कर रहा हूँ मल्टीपल आइटम्स वैल्यूज़ का, तो डब्ल्यूज डॉ अपेंड क्यू, क्यू के ऑल जो है वैल्यू डब्ल्यू में आने चाहिए। तो दैट्स हम देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे देखना जो हमारे क्यू के वैल्यूज़ है लिस्ट है, क्यू लिस्ट एज अ उसे 1 इंडेक्स फॉलो हो रहा है डब्ल्यू में, और एक्सटेंड क्या कर रहा था, क्यू के ऑल आइटम्स को, ऑल वैल्यूज़ को एज अ सेपरेट इंडेक्स दे रहा था। बट एक्सटेंड में क्या, अपेंड में क्या होता है कि ऑल वैल्यूज़ को एक ही इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये ही हमारा डिफरेंस बिटवीन है एक्सटेंड और अपेंड का। तो यहाँ पे देखना आपको एक्सेस करना है, यहाँ पे देखना एज ए 1 इंडेक्स पे आ रहा है 10 20 30 एज 1 इंडेक्स से। हमने पहले देखा तो -1 में 30 है, 5 में 20 है, 4 में 10 है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑल वैल्यूज एज 1 इंडेक्स है, बट आपको उसमें भी देखना है। सपोज आपको देखना है 20 देखना है, तो कैसे देखेंगे, अनदर स्क्वायर ब्रैकेट 20 के इंडेक्स कितने हैं 1 है, बिकॉज स्टार्टिंग विद 0 और 1। तो यहाँ पे 1 देना आपको इजीली डिस्प्ले हो जाएगी। ये था अपेंड और एक्सटेंड। अनदर मेथड इज अ इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, अब एक 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, 1 इज अ इंडेक्स, सेकंड इज अ वैल्यू। तो मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स लिए, वैल्यूज़ ली, और उसे इंसर्ट कर रहा हूँ, लिस्ट 1 में इंसर्ट कर रहा हूँ। सेकंड पोजीशन पे मैं इटेल हाई देना चाहता हूँ, तो मैंने इटेल हाई दिया। बट 23 इज़ अ फर्स्ट पोजीशन, 12 इज़ अ 0th पोजीशन, 34 इज़ अ सेकंड पोजीशन थी, वहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, इटेल हाई चाहिए था। मैंने इटेल हाई दिया, और 34 जो सेकंड पोजीशन पे थी वो मूव हो रही है थर्ड पोजीशन पे। ये था इंसर्टिंग। अभी कुछ अदर ऑपरेशन जस्ट लाइक काउंट है। रिटर्न अ काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जेक्ट ऑकर इन अ लिस्ट। सपोज 1 2 3 ABC XYZ जा रहा है, इनमें से ABC 1 2 3 इसका काउंट निकालना है, मतलब वो कितने टाइम रिपीट हुआ है मेरे लिस्ट में। तो दैट्स आई एम यूजिंग अ काउंट। मैंने क्या दिया, मेरे वेरिएबल का नाम दिया काउंट ऑफ मुझे जो वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही है वो देखने हैं, तो यूजिंग अ काउंट मेथड। तो दैट्स एन और 2 बता रही है, और ज़ारा कितनी बार हो रहे हैं 1 टाइम। तो देखते हैं हो रही है या नहीं, हो रही है। ओके, मैं सपोज यहाँ पे 1 2 3 अनदर 1 टाइम असाइन किया, उसे ऑल एक सेम वैल्यू असाइन की, तो दैट्स एन मेरा काउंट बढ़ रहा है। मैंने ज़ारा को भी एक ज़ारा असाइन किया, तो उसका भी काउंट बढ़ रहा है 2। ये था हमारा काउंट फंक्शन। देन नेक्स्ट वन इज सॉर्ट। द सॉर्ट मेथड सॉर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट यूज द कंपेयर फंक्शन ऑफ अ गिवन। यहाँ पे देखना फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लिस्ट ऑफ वन सॉर्ट किया और उसे शो कर दिया। यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टराइज है उससे शो होगा, बायोलॉजी आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, मैथ आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है। ये था शॉर्ट मेथड से। देन नेक्स्ट वन इज अ रिवर्स। उसे रिवर्स कर दिया मैंने, तो रिवर्स करने से क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप शॉर्ट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू करते हैं तो आपका भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। सपोज यहाँ पे शॉर्ट में कुछ मैंने दिया नहीं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू नहीं दिया, तो दैट सेम क्या हो रहा है, मीन्स फॉल्स है। मीन्स क्या, फर्स्टली बायो आ रहा है, देन केम है, देन मैथ और देन फिजिक्स है, बट आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू रखा, तो दैट सेम वो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेगा, फिजिक्स, मैथ, केम और बायोलॉजी। आप लूपिंग में भी पहले हमने फॉर लूप में लूप देखा है, तो सो ऑन सेम है। फॉर आई इन दिस 10 समथिंग है, और मैंने उसका स्क्वायर निकालना है, तो 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है 100, 20 का 400, 11 का 121,
then 21 का 4 for 1, this is a square of. Then next one is a same again square फाइंड कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे देखना मुझे क्या करना है, एक लिस्ट है मेरी 10, 20 so on एलिमेंट्स वैल्यूज अवेलेबल इन माई लिस्ट ए. तो उसके मुझे ए इवन और ऑड सेपरेट करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन ए दिस माई वेरिएबल, और 1 by 1 इस पर ऐड जाएंगे. मैंने यहाँ पे लूपिंग लगा दी है. इफ आई मॉड्यूल 2 मतलब क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 2 करने पर 0 0 आता है तो अपेंड होगा इवन पे. और 11 सपोज ए ऑपरेशन फॉल्स होता है, दिस कंडीशन इज अ फॉल्स, दैट टाइम इल्स पार्ट इज अ रनिंग, और जो भी आपका वैल्यू है वो ऑड में अपेंड होगी. मतलब ऑड डॉट अपेंड ऑफ आई, आई में जो भी वैल्यू आ रही वो ऑड में अपेंड होगी. तो इस टाइप से ये था हमारा. ओके, लास्ट वन इज अ रिमूविंग मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट. यहाँ पे देखना मैंने एक लिस्ट ली, मेरी ये लिस्ट है, और एक मेरी सेकंड लिस्ट है 20, 50, 90 है. ये एलिमेंट रिमूव करने हैं मुझे लिस्ट 1 से. तो दैट सेम फॉर आई इन एयर मीन दिस. ओके, मैं इससे बी कर देता हूँ. मुझे क्या करना है, बी के वैल्यूज़ ए से रिमूव करके मुझे ए को प्रिंट करना है. तो क्या करूँगा, फॉर आई इन बी ए डॉट रिमूव आई में जो भी बी की वैल्यू आ रही है उसे रिमूव कर देना ए से. इस वजह से ए डॉट रिमूव ऑफ आई. ओके, अभी रिमूव रहा है. तो टुडे सेशन इज कंप्लीटेड. टुडे सेशन इज डेटा टाइप्स. फर्स्ट डेटा टाइप्स इज द नंबर इंक्लूडिंग 3 डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, देन स्ट्रिंग, और लास्ट डेटा टाइप इज अ लिस्ट. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम टपल, सेट और डिक्शनरी.